Okay. So I'm pretty much sure that this interview program which is going on for you guys is aimed in a direction that you guys can clear your interviews in a very positive manner, and you can achieve your results with flying colors. So till now, whatever we had discussed, that was, you can say, the static portion of your interviews. स्टैटिक मीन्स कि पता ही है ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, व्हाई एमबीए, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, मतलब दीज आर वेरी कॉमन एंड फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आई एम श्योर दैट यू गाइस हैव प्रिपेयर्ड एंड हैव गिवन अ गुड थॉट ऑन दिस, and I can see you guys are submitting your SOPs also. So I was speaking to some of the candidate. I don't know, Arpit or Harshit, maybe somebody had spoken regarding preparing SOPs also. So I'm sure that maybe you have prepared and you are in the right direction. And Soumya, your did you are you going with the same answer which we had discussed about your entrepreneurship goals Uh, and all? yes, sir, I decided to remove entrepreneurship. Like, I thought like I can still align the technical background with the business aspirations. And currently, I'm taking more interest in, like I said, that instead of entrepreneurship currently, I would say that initially I'll go and work in the industry, and roles would be marketing, or I feel like consulting would be a good option as well because of the technical background. Later, entrepreneurship, but as I do not have a proper framework of the idea, so other than that. Okay. So at least you have prepared your background. I'm sure, matlab, that you have your answers ready. That how means if the interviewer is going to ask you that why do you want to do MBA, then I hope everybody is very much confident now that why are you means what answer will you be giving, and I'm sure that everybody is very much prepared on these aspects. Like within the Yes, field. sir. Okay, Yes, sir. so like I was discussing that whatever you had prepared and studied till now is a static part, is the static part of interview. That means we know most of, based on our experiences, we know that what questions are very frequently asked by the interviewers, and we have those answers. Means we prepare for those answers and we try to give our best. But now we have to focus on the GS part, or maybe the current events and development, the international relations, economy, science and technology. This is a very dynamic part. Not very much. Means this is not a thing which you can cover in 2 days or 3 days. This requires a constant dedication and constant attention towards the daily events and daily news. Okay, so this is a very dynamic part, and questions can be asked from anywhere. But for you guys, I have narrowed it down to few aspects. But I means that also to cover that portions also is a very typical and tough task. So I'll give you a solution for that also, how you can prepare for that in such short period of time. As you guys are telling me that most of your interviews are lined up in February, so I don't think we have much time. We are almost in the end of January. So, have you guys done any background search or anything on your level that what probable questions can be asked on GK and something like this? I would be needing inputs. This class will be today very interactive between both of us. Okay, I'll not be the only person who will speak because GK is not something कि सिर्फ आपको रटा दिया जाए. ठीक है, तो मिलके दोनों तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी. Then only there is a possibility that you will be able to answer few of the questions. So वो have तो you सर done it? 70-80 टॉपिक्स आए गैस जो पिछले कुछ सालों के मान लो है इम्पोर्टेंट। कोविड हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, तो ये 70-80 लिस्ट है टॉपिक। तो इन्हीं का थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ताकि कुछ पूछें तो कुछ बताने लायक रहे। फिर ऐसा सर नहीं है कि फाइनेंस का वो बजट भी आने वाला है, यूनियन बजट, तो वो उसके रिगार्डिंग वो कैसे आएगा ना। यूनियन बजट, आई डोंट थिंक सो. यूनियन बजट दैट वो भी बहुत एंड में आएगा. इट विल बी इन अराउंड मतलब यूनियन बजट से क्वेश्चन आई डोंट थिंक. मींस देयर कैन बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दैट ये स्टेप लेने से सप्लाई डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, मींस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्वेश्चंस. ठीक है,
बट आई डोंट थिंक सो यूनियन बजट से आपसे फैक्ट्स पूछेंगे, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फैक्ट्स। ओके, सर 1 फेब को ही आ जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से फेब में ही आ जाएगा यूनियन बजट। तो पूछ सकते हैं कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, कि बताओ उस सेक्टर में कितना दिया है, या इस बार बजट में क्या ज्यादा नया आया है, तो शायद पूछ सकते हैं उसमें से। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल उसको पूछ सकते हैं, बिल्कुल उस पर कर सकते हैं काम, ठीक है। तो ओके, so what I want to share is that where we have to focus is that key areas such as science and technology is one aspect, ठीक है। Being an MBA grad, आपसे ये expect किया जाएगा that you are very much updated and aware about the recent happenings in the country, ठीक है। Whatever recent happenings are going, whatever is in news, and these current developments can be related to topic 1 science and technology, okay, topic 2 environment and ecology, then topic 3 there will be economy, Indian economy basically. Then topic 4 can be some political movements or like some political updates like chief minister कौन change हुआ या who is the home minister, something like this, like this. एकदम current portion की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। Then आपसे डिफेंस के बारे में कुछ बातें की जा सकती हैं, डिफेंस पे नया कौन सा इक्विपमेंट अभी आया, जैसे what which was the aircraft carrier recently which was retired by the Indian Defense Forces. It was the first aircraft carrier of our country, ठीक है। तो आई एम नैरोड इट डाउन टू दीज टॉपिक्स, मोस्टली आपसे इधर बात की जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट पे बात कर सकते हैं। देन हिस्ट्री पे भी पूछा जा सकता है, आई डोंट नो मतलब how are they going to ask questions, but you should have a very basic understanding of at least our Indian national movement, okay, so that is the modern history that means मैंने last time I remember I had asked this question with one of you guys that why we celebrate Republic Day, so ये somebody was not able to answer this as well, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है भाई, well I'm not asking you, I'm not expecting you to mug all these up in within 10 days, but at least बेसिक चीजें, आई विल हेल्प यू आउट, बेसिक चीजें यू शुड नो कि भाई ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। एवरीबडी इज हियर इन द कॉल, कौन कौन जानता है अबाउट द लायन कैपिटल, हु नोज अबाउट द लायन कैपिटल, जो अशोक स्तंभ है हमारा, यू माइट हैव सीन अशोक स्तंभ, देखा है किसी ने? वो नेशनल Yes, sir. नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, Yes, sir. Yes, sir. देखा है? उसमें कितने लायंस हैं? 3. मतलब रिमेम्बर ना, वो लायंस हैं, मतलब उसमें 3 बना lions. नीचे अशोक चक्र है, ठीक है। तो उसमें कितने Yes, लायंस sir. हैं? एटलीस्ट ये पता 3 होना चाहिए lions भाई, are 3 लायंस हैं। पूछ लिया अगर किसी ने, व्हाट तीन इज द दिखते नेशनल हैं I एम्बलम guess, ऑफ 4 इंडिया? होते हैं। 3 दिखते हैं आई गेस, 4 होते हैं। और किसी का आंसर? सर 4 ही होते हैं। Actually, 4. 4 लाइन्स थे बट उन्होंने 3 कर दिए फिर। क्या कर दिए थे? बिफोर देयर वाज 4 लाइन्स बट नाउ देयर आर 3 ओनली। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? होते 4 ही हैं, दिखते 3 हैं। उन्होंने वो शेर का जो साइलेंट मोड था उसको थोड़ा अग्रेशन में बदल दिया। हाँ नहीं, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट 3 कर दिए हैं 4 में से? सर आई हर्ड इन द न्यूज़। नहीं नहीं, देखो कभी भी आई गेस आई एम इंटरेक्टिंग विद यू फॉर द फर्स्ट टाइम, विशाखा, हाय। हाय तो सर। So Vishakha will not be giving such strong opinions in the interview based on what we have just heard. Either you know it properly or you do not know it. GK is not something that आपसे ये पूछा गया कि भाई महात्मा गांधी कौन थे, उनका पूरा नाम बताओ, तो आप बोलो मोहनदास गांधी नाम गांधी, समथिंग लाइक दिस, ऐसे नहीं बोल सकते आप। इधर यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, ठीक है। इट्स लाइक मैथ्स, बिल्कुल या तो सही आंसर है या गलत आंसर है, आधा अधूरा नहीं, ओके ठीक है। सर। तो ये कभी मत बोलना, ठीक है। 3 नहीं किए हैं, एंड आई टेल यू ऑल गाइस कि उस पूरे कैपिटल पे देयर आर 5 लायंस, नॉट 4, ठीक है। 4 इज ऑन द टॉप, मतलब जो 4 जो सर्कल में खड़े हुए हैं ना, वो आपको दिखाई देंगे। 4 मतलब आप लोग अगर देखना इसके बाद जब मैं बताऊंगा, एंड जो नीचे उसका बेस है जहां पे अशोक चक्र बना हुआ है, देयर आर 3-4 एनिमल्स शोन एज वॉकिंग इन दैट बेस, जिसमें बुल है, डियर है, तो एक लाइन वहां भी है,
ठीक है, तो देयर इज अ ट्विस्ट कि अगर आपसे पूछा जाए कि अपने नेशनल एम्बलम में टोटल कितने लाइंस हैं, तो आंसर विल बी 5, बट एट द मींस हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द कैपिटल पोर्शन ऑफ द नेशनल एम्बलम, तो फिर 4 है आंसर। ठीक है, 3 कभी नहीं। हमारे झंडे में कितने कलर्स हैं? 4. एवरीबॉडी, सब लोग अपने अपने आंसर देते रहो। 4 ही हैं। 4. Sir, 3. और एनीबॉडी एल्स? भाई इंटरेक्टिव सेशन सर है वो ये। फोर दिस इज सर। एन इंटरेक्टिव सेशन, आई हैव टोल्ड यू गाइस। ठीक है, सब बात करेंगे, सब इंटरेक्ट करेंगे। तो हाउ मेनी कलर्स आर देयर? 4. फोर 4 होंगे सर। भाई ट्राई कलर क्यों बोलते हैं फिर? मेनली Blue. ट्राई कलर है, बट टोटल कलर तो 4 ही है ना सर उसमें। सर चक्र को जोड़ के सर। आई अंडरस्टैंड भाई, बट योर पॉइंट इज कि तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारा तिरंगा क्यों बोलते हैं, भाई इट इज ट्राई कलर, उस ब्लू कलर को आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, जो फाउंडिंग फादर्स हैं जिन्होंने फ्लैग बनाया, क्या लगता है उन्होंने नहीं देखा होगा वो कलर? देखा है तभी तो वहां पे डाला है ना। बट स्टिल इट इज कॉल्ड तिरंगा, ट्राई कलर। तो कभी भी आपसे कोई एनी रैंडम डे इफ एनीबॉडी आस्क कि भाई हमारा फ्लैग जो है उसमें कितने कलर्स हैं, यू विल से इट वेरी लाउड एंड क्लियर, 3 कलर्स। ठीक है, कौन कौन से कलर्स हैं? सैफरन, White वाइट एंड ग्रीन। and green. ठीक है, चलो कितने उसमें अशोक चक्र में कितने स्टिक्स होते हैं? 24. 24. 24. वेरी गुड वेरी गुड, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। भाई आज मुझे फिर से बता दो, उस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, एंड आई हैड आंसर्ड दिस क्वेश्चन आल्सो। So the constitution came into action on that. Yes, the constitution came into action on that day. ओके, तो ये जैसे अपने क्या ना, मतलब यू शुड नो अबाउट योर कंट्री एटलीस्ट, कि भाई कितना हमें पता है। यू शुड नो अबाउट द लीडर्स, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। मतलब दिस इज अ वेरी डायनेमिक टॉपिक, जीएस। व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू इज अ वेरी डायनेमिक टॉपिक। मतलब यू हैव टू गिव अ गुड अमाउंट ऑफ, मतलब इसमें प्रिपरेशन लगती है, यू नीड टू गिव गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू इट। बट बेस्ड ऑन अभी जितना टाइम आप लोगों के पास है फॉर योर इंटरव्यूज, आई वुड सजेस्ट दैट आप लोग एक काम करना, मतलब दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट फॉर यू गाइस। ठीक है, मतलब अगर ये भी कर लेते हो गिवन द टाइम फ्रेम, तो आई बिलीव कि काफी क्वेश्चंस आंसर कर जाओगे। ठीक है, तो यू कैन डू दिस कि लास्ट 6 महीने के आपके इंटरव्यू से एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले की जितनी भी करंट इवेंट्स हैं, जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड गो थ्रू इट प्रॉपरली। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग इट अप। ठीक है, एटलीस्ट वैसे तो 1 साल होना चाहिए, बट 6 महीने मतलब कम से कम बिल्कुल। एंड 6 महीने आप नॉर्मल नेट पे डालोगे कि करंट अफेयर्स, ऐसे डालो करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, उस पर बहुत सारे टॉपिक वाइज आपको न्यूज मिलेंगे। ठीक है, सो यू गाइस कैन जस्ट गो थ्रू दैट, जस्ट एक मतलब ग्लिम्प्स लिया कि क्या है, एंड एक रीडिंग भी मारोगे तो यू विल बी अवेयर अबाउट थिंग्स कि हाँ भाई ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है। ठीक है, इंडिया ने अभी अपना एक नया ड्रोन लॉन्च किया है, 5G इनेबल ड्रोन, क्या नाम है उसका? बताओ भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, मतलब बेसिकली साइंस एंड टेक आप लोग डालोगे अगर स्पेसिफिकली, आई होप एवरीबॉडी हैज नोटेड द टॉपिक्स, व्हाट टॉपिक्स आई हैड मेंशनड। यस ठीक है, सर। साइंस एंड टेक। Yes, sir. ठीक है, एंड एनवायरनमेंट के बारे में एक क्वेश्चन, मतलब जो आई बिलीव दैट इज प्रोबब्ली गोइंग टू आस्क, व्हाट इज द इंडियाज पंचामृत पॉलिसी एट द COP26 सेशन? मोदी जी ने क्या पंचामृत पॉलिसीज दी हैं अभी? ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। I'll give you a brief background about this, that the whole world is struggling from several environmental issues like global warming. Majorly it is global warming. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट मेरे को बताओ कोई के, फटाफट। ग्लोबल वार्मिंग होने से
क्या नुकसान है अपने प्लेनेट को? Melting of ice caps, विच विल लीड टू which will lead to like natural Hmm. disasters more. And कैसे? so तो this ओशियन का पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो उससे इश्यूज हो जाएंगे, मतलब राइट सी लेवल राइज हो जाएगा। उसके अलावा हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर ओवरऑल जो अर्थ का है वो इंक्रीज हो चुका है। राइट ये मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जो कोस्टल एरियाज हैं अक्रॉस द ग्लोब वो डूबने लगेंगे। ठीक है, डू नॉट नोट ऑल दिस डाउन भाई, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अ जनरल, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो दीज क्वेश्चंस वुड अपीयर इन योर इंटरव्यूज। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस अ वे आउट कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है एंड क्या बेसिक चीजें हैं जिनके लिए यू शुड बी प्रिपेयर। ठीक है, तो दिस मतलब इट वाज अ गुड आंसर हर्षित, दैट एटलीस्ट यू नो कि भाई मतलब ओशियंस एंड सीज में आपका वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, देन कोस्टल एरियाज विल बी सबमर्ज्ड। अभी जोशीमठ की न्यूज पढ़ी है किसी ने रिसेंटली? Yes, sir. यस सर। क्या पढ़ा है? So the down is sinking because it was based on a land which is not a rock on a mountain. It is a land which was created by a landslide many years back, and now huge cracks have appeared in the road and homes. So the people are shifted now. So how these cracks appear? How landslides So, appear? Landslides कैसे occur होते हैं? so due to tectonic movement after an earthquake, the land subsidizes. बहुत अच्छे। कितने लोगों को ये बात पता थी? ईमानदारी से बता देना भाई। How many of you knew this? How many of you heard about this tectonic movement of plates? In Joshimath. Not in Joshimath. Yes, sir. सर जनरली पता था सर। सर कहीं बड़ा सा था, पर मतलब अभी जोशीमठ में क्या चल रहा है वो नहीं पता था। So in नहीं, Joshimath, I had read that the rocks had water in it, so because of the drilling, water came out. That's why it's sinking now. It was an aquifer. The area is also in tectonic movement place, and it has been receiving he around had 3.5 to 4. Arpit has told a larger phenomena, that is tectonic movement. Due to tectonic movement, we face these earthquakes and volcanic eruptions. ठीक है, अब ये इतना ज्योग्राफी में नहीं घुसूंगा मैं, बट आई एम टेलिंग यू दिस कि मतलब ही वाज ऑन द राइट ट्रैक। मतलब इसको एक ये है बेसिक आइडिया कि हाँ भाई अर्थक्वेक वगैरह हुए थे, पुराना लैंडस्लाइड था, द फाउंडेशन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन वाज नॉट वेरी in a very good condition so that a town can be established over that, but it established eventually. ठीक है, and given the environmental hazards or impacts which we are facing these days due to global warming and many other reasons, वो जो है earthquakes वगैरह की वजह से जो elevated grounds होते हैं वो खिसकते हैं थोड़ा नीचे ड्यू टू ग्रेविटी। आप सोचो एक पहाड़, अगर पहाड़ को आप तोड़ते हो तो नीचे की तरफ ही तो गिरेगा ना, तो दैट इज कॉल्ड लैंड स्लाइड, वो स्लाइड हो जाता है लैंड नीचे की तरफ। ठीक है, तो नो वरीज, दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया। मतलब ये अभी न्यूज में है काफी जोशीमठ, सो एटलीस्ट यू शुड नो कि भाई हाँ क्या डिजास्टर चल रहा है एंड व्हाई, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो यू कैन गिव अ रीड एंड nobody is going to know, none of the interviewers are going to like dig in the current affairs and ask questions from that. जो सबसे recent topics चल रहे होंगे उन्हीं में से आपसे questions होंगे। ठीक है, आई एम टेलिंग यू अगेन, जो सबसे recent जैसे जोशीमठ पे अभी हमने डिस्कशन किया है, so there will be questions from this. ठीक है, मे बी अगेन आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी डायनेमिक पोर्शन। क्या आएगा क्या नहीं आएगा नोबडी नोज, इट डिपेंड्स ऑन द माइंड ऑफ इंटरव्यूअर। एवरी डे देयर इज हंड्रेड्स ऑफ न्यूज अक्रॉस दीज डोमेन्स, बी इट एनवायरमेंट, आज कोई नई स्पीशीज मिली, अभी कितने लोगों को पता है एक ऑरेंज कलर का बैट स्पॉट हुआ है नया? हाउ मेनी ऑफ यू नो? एक ऑरेंज कलर का चमगादड़ मिला है। अच्छा चलो ठीक है, इंडिया में कितने स्टेट्स एंड कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 28 और 8। सारी यूनियन टेरिटरीज के नाम बताओ। ले सॉरी सब एक एक लद्दाख। बताएंगे, सब एक एक बताएंगे। कितने पार्टिसिपेंट्स इसमें? 9 है ना, सब एक एक बताओ चलो। लद्दाख, सर दमन एंड दीव, Pondicherry,
Lakshadweep, और अंडमान and निकोबार, और Pondicherry. हम्म Pondicherry. बोल दिया ना किसी ने पौंडीचेरी तो ऑलरेडी। और Sir, Dadar and Nagar Haveli. Chandigarh, हाँ, और जम्मू Delhi, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गुड वन। ठीक है, और Delhi. दिल्ली, नाइस, हो गए। Hmm. ठीक है, तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी क्यों है? मतलब दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया यार, मतलब वहां पे इलेक्शंस होते हैं प्रॉपर, वहां का चीफ मिनिस्टर है। आई होप एवरीबडी नोज कि यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लेफ्टिनेंट वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर। आई होप सबको पता होगा। yes Yes, sir. sir. Sir, can I take a guess? I mean, I know little bit in this topic. बोलो बोलो, गो अहेड। So there is an area in Delhi where the government, I mean the Prime Minister and all the ministries office are. So that is the area that is controlled by the central government. So that is a union नहीं, territory, नो 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 I नो नो guess. नो 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 ये वॉशिंगटन डीसी का आ गया। नहीं, व्हाट इज द अच्छा चलो सब लोग ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी? पहली चीज मुझे ये बता दो। तो जो आपने बताया डायरेक्टली कंट्रोल बाय यूनियन गवर्नमेंट, Yes. स्टेट गवर्नमेंट में ऑटोनॉमस रहता है, मतलब जो स्टेट में जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसका कंट्रोल रहता है डिसीजंस। ठीक है, और इसके अलावा? अच्छा मेरे को ये बता दो, लेफ्टिनेंट गवर्नर का इक्विवेलेंट कौन होता है स्टेट में? Minister. यूनियन टेरिटरी में द हेड इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। स्टेट में कौन होता है हेड उसकी जगह Chief पे? Minister. ठीक है। Chief Chief Minister. राज्यपाल Minister. कि नहीं? गवर्नर, गवर्नर, हाँ, वो राज्यपाल उसे बोलते हैं क्या? राज्यपाल, हाँ भाई उसी को बोलते हैं राज्यपाल। हाँ। हिंदी भाषा में चल रहा है। ठीक है, तो आई टेल यू, मतलब ये आपको पता होना चाहिए आई बिलीव कि यूनियन टेरिटरीज आर बेसिकली in under the direct control of the union government, ठीक है, and it is controlled via lieutenant governor who is the in charge of that particular union territory, and he reports directly to the president of India who is the highest authority in India, ठीक है। तो स्टेट्स में अपने जो भी एक्टिविटीज हो रही होती है उन सबको वो रिपोर्ट करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर भी है और एलजीबी, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी। क्यों? सर ये तो नहीं उसके पता। दो रीजंस भी तो है, एनसीआर भी तो है, तो उसके अंदर ही आता है। अरे मोटा भाई हमारे आते हैं ना, ये ऑलवेज से, हम्म अरे मोटा भाई कह रहे हैं, मफलर वाले भैया जी, वो आते हैं ना, वो बोलते हैं हर समय कि भाई धरने पे बैठ जाते हैं कि भाई मतलब पुलिस हमारी बात नहीं सुनती है, ये नहीं सुनती है। तब सुन के थोड़ा आइडिया नहीं लगता क्या इनसे? मतलब कभी सोचा है एक बार, मफलर वाले भैया इतनी बार बोले हैं कि मतलब पुलिस मेरे कर गया कंट्रोल में नहीं है, तो हैव यू गाइस एवर वंडर्ड व्हाई पुलिस इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल? बिकॉज सर बीजेपी सरकार चाहती है उनको देना। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला था पुलिस, कि हम करेंगे, स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। यूपी पुलिस यूपी के सीएम के अंडर है, एमपी पुलिस एमपी के सीएम के अंडर है, महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र के सीएम के अंडर, दिल्ली पुलिस दिल्ली सीएम के अंडर। क्योंकि सर दिल्ली स्टेट नहीं है ना, तो वही तो मसला है कि चुनाव में बोलते हैं कि स्टेट बनाएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, पर देते नहीं है, इसलिए वो दे नहीं रहे कंट्रोल। देना इतना आसान नहीं है, खैर ठीक है, दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट, बट आई विल गिव यू एन आंसर फर्स्ट। सी द सिचुएशन विद दिल्ली वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री मींस इट शुड बी आइडियली इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आइडियली अगर आप देखो, राजधानी पे उसी का राज होना चाहिए जो कि देश पे राज कर रहा है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड सेवरल ऑफ द बिल्डिंग्स, सेक्रेटेरिएट हो गया, पार्लियामेंट हो गया,
एंड सुप्रीम कोर्ट हो गया, एवरीथिंग, मतलब जो मेजर चीजें हैं वो सारी मेन बिल्डिंग्स वगैरह एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ, मतलब एवरीथिंग इज इन दिल्ली। ठीक है, तो अब भाई एक बात बताओ, जस्ट गिव अ लॉजिकल थॉट दैट इफ आई एम द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर एन एग्जाम्पल, एंड मेरे यहाँ यूपी में एक पार्लियामेंट बना हुआ है, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज एवरी टाइम कमिंग एंड ही इज हैम्परिंग द सिक्योरिटी ऑफ माई, क्या कहते हैं, माई स्टेट। ठीक है, वो आ रहे हैं तो उनके लिए सारे सिटीजन्स परेशान होंगे भाई। व्हेन प्राइम मिनिस्टर राइट्स देन देयर आर एम्प्टी स्ट्रीट्स ऑलवेज। ठीक है, आपको रोक दिया जाएगा अगर आप सड़क पे भी चल रहे हो। ठीक है, तो बार बार ये दखल अंदाजी किसी भी चीफ मिनिस्टर को अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम थी काफी, एंड यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट वांटेड टू लूज कंट्रोल ओवर दिल्ली। ठीक है, कल को भाई जैसे आपने सुना होगा इन दिनों की दैट कोई कोई भी उठ के आया, कोई पॉलिटिकल पार्टी, अभी लखीमपुर में कुछ इंसिडेंट हुआ था दैट फार्मर डेथ एंड ऑल, तो उसमें भाई दूसरे दूसरे स्टेट्स के लीडर्स चले आ रहे थे कि हम भाई जाएंगे लखीमपुर सिंपैथी वोट वगैरह कलेक्ट करने। ठीक है, एंड हमारे सीएम ने उनको रोक दिया, आप नहीं जा सकते, दिस इज एन इंटरनल मैटर और हम इसको देखेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब ऐसे अगर दिल्ली का सीएम बार बार इंटरफेयर करेगा तो हाउ विल द यूनियन गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेशल केस बनाया गया, दिस इज कॉल्ड एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और इसमें मतलब यू कैन गिव अ रीड टू इट वंस, इसमें तीन चीजें जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट से ले ली गई। लैंड, लैंड की पावर नहीं है आपके पास, पुलिस की पावर नहीं है, और एक और चीज है, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर राइट नाउ, बट तीन चीजें, सारे कंट्रोल्स आपको दिए जाएंगे और फॉर बीइंग एन ऑटोनॉमस स्टेट, बट तीन पावर्स आपसे ले ली जाएंगी, और उन तीन पावर्स में पुलिस, लैंड और एक और है, लेट मी चेक, आई विल चेक एंड लेट यू नो। चलो आई विल नॉट वेस्ट टाइम, चेक कर लेना, एक और चीज है जो ले ली गई जस्ट टू रिजॉल्व दिस स्पेशल सिचुएशन। ठीक है, इसीलिए दिल्ली इज अ वेरी स्पेशल केस जहां पे आपको चीफ मिनिस्टर भी मिलेगा एंड एलजी भी मिलेगा। ठीक है, अब मेरे को फटाफट ये बता दो, नॉर्मल हाउ डज अ स्टेट और हाउ डज अ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब ये फंक्शन कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ और क्या कहते हैं, आवर सिस्टम, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। सभी के वीडियो ऑफ है क्या? नहीं सर होगा। ओके, नहीं सर, वो चेक ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उसको चेक करते हैं ना आराम से। लीव दैट, ये बताओ मेरे को कि कैसे, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर स्टेट, मतलब हमारा स्टेट की बेसिक फंक्शनिंग कैसे है, क्या है, हाउ डज आवर कंट्री वर्क, इन व्हाट मैनर। कंट्री लेवल पे या स्टेट लेवल पे? दोनों लेवल पे बता दो भाई, पहले सर कंट्री मतलब कंट्री यूनियन पे लेवल तो पे हमारे बता दो। अलग अलग सेक्टर्स के मिनिस्टर्स हैं पहले तो, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल सकते हो, मतलब आई एम जो नॉट, हाँ मतलब व्हाट आर द आर्म्स ऑफ, आर्म्स बता दो गवर्नमेंट के। कार्यपालिक यार, न्यायपालिका, कार्य, Judiciary, हाँ राइट 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 legislative, राइट, and executive. एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो legislature. हाँ इन्होंने आंसर दे दिया, यशस्विनी ने आंसर दिया है, गुड वन यशस्विनी। सो वी हैव थ्री आर्म्स, द लेजिस्लेटिव आर्म, द एग्जीक्यूटिव आर्म एंड द जुडिशरी। क्या रोल है इन लोगों का, व्हाट इज लेजिस्लेटिव आर्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव आर्म, क्या करते हैं ये लोग? यशस्विनी, So actually, I'm a little confused. Legislative is, I guess, Lok Sabha and Rajya Sabha. Executive is Lok Sabha. Okay. मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव भी हैं, इट इज नॉट जस्ट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स आर आल्सो देयर। ठीक है, आई जस्ट वेरी सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज लेजिस्लेटिव। So they are the ones who frame the laws for the country or the. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ग्रेट आंसर आदित्य। तो लेजिस्लेटिव का सिंपल मतलब होता है जो लॉज बनाते हैं, बिना लॉज के हमारा देश रन नहीं कर सकते, पहली चीज। हु आर द एग्जीक्यूटिव्स, दूसरा बताओ अब। भाई So देश they are कैसे the. चलेगा, So they are the देश कैसे, bureaucrats. ब्यूरोक्रेट्स। सर वो एग्जीक्यूटिव की लॉज डेफिनेशन बताओ पहले, एग्जीक्यूटिव क्या होता है? लॉज को जो एग्जीक्यूट करवाते हैं। बिल्कुल,
एब्सोल्युटली राइट हर्षित। ठीक है, मतलब देश कैसे चलेगा, कोई भी देश हो, आप ये सोचो आप कैसे गए, देयर शुड बी अ सेट सम सेट ऑफ वेरी थिंक वेरी लॉजिकली, देयर शुड बी सम सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू कंट्री गवर्न होगी। ठीक है, नहीं तो सब अपनी मर्जी के मालिक होंगे तो वैसे देश नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो एक सेट ऑफ लॉज होने चाहिए, उसके लिए हमारी एक लेजिस्लेटिव आर्म है, लेजिस्लेटिव आर्म जो लॉज बनाती है। लॉज कहाँ बनते हैं, यूनियन लेवल पे लोकसभा राज्यसभा, एंड स्टेट लेवल पे विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये हो गया लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन लॉज को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अब अपनी यूनियन में कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव, ये बताओ मुझे। So the civil servants? प्रेसिडेंट। सिविल सर्वेंट्स को आप इम्प्लीमेंटर्स कह सकते हो, दे एक्चुअली इम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब Okay. एग्जीक्यूटिव आर्म किसको कहते हैं वो मेरे को बताओ। किसी ने भी कुछ बोला था मेरे स्टार्टिंग में, somebody was saying कि भाई मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड होते हैं, ये प्रेसिडेंट होते हैं, वो होते हैं। बिकॉज हाँ तो सर मिनिस्टर्स जो होते हैं डिपार्टमेंट्स के, So ठीक है, अब prime मेरे को एक चीज minister, बताओ। then cabinet of ministers. बहुत बढ़िया, just a very simple question so that you can understand this logically. Just tell me this, एक जगह का सांसद या विधायक, सांसद या विधायक I would say मतलब member of parliament or member of legislative assembly, is it compulsory that he will be holding a ministerial post in the parliament or state legislative assembly? No. No, sir. जरूरी नहीं है सर। जरूरी नहीं है ना, but he will be sitting in the parliament or state legislative assembly because he has won the elections. ठीक है, तो Yes. जिनको मिनिस्ट्रीज मिलती हैं उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। लॉजिकली समझना ये चीजें, रट नहीं पाओगे बट एटलीस्ट यू विल गिव द कॉन्सेप्ट देयर ना। ये मतलब ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारा देश कैसे चलता है, अगर ये भी नहीं बता पाओगे तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारा देश कैसे चलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन लेवल पे। मैं पहले बात करता हूँ यूनियन लेवल पे, देयर इज लाइक रेलवे मिनिस्टर है आपके पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है। ये सब क्या है, दीज आर स्पेसिफिक। इन्होंने कुछ अलग से तीर तो मारा नहीं था, ये भी चुनाव ही जीत के आए हैं बाकी लोगों की तरह। ठीक है, ये भी बाकी Yes, लोगों sir. की तरह नॉर्मल, दे वन द इलेक्शंस एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एरिया, जिस एरिया से वो चुनाव जीत के आए हैं। Girls, are you able to get this? Whatever, I'm not Yes. specifically girls, everybody else. Girls Yes. थोड़ा politics में less interested होती हैं, so I just, it was, मतलब my question was a little specific for them. ठीक है, so मतलब इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, जैसे राजनाथ सिंह को दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री, अमित शाह इज हैंडलिंग होम मिनिस्ट्री, तो ये लोग होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको बोला जाता है। दीज आर लाइक, जैसे लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, कैन एनीबॉडी टेल? 543। 542, 543, yes. 545, 545। 552 545. 552 ठीक है, जो भी है, समवेयर नंबर 545 इज द करंट, मेरे ख्याल से वो Strength. है अटेंडेंस करंटली, करंट 543 is the current, so स्ट्रेंथ, exactly. राइट। ठीक है, एंड टोटल नंबर इज शायद 552 किसी ने बोला था। ठीक है, तो आई वांट टू से कि इस 552 में 50 ऐसे होंगे, 10% या 15% मैक्सिमम लिमिट होती है, 15% से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, जो कि मतलब मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, not everybody understand this basic concept. Not everybody who is a member of legislative assembly or member of parliament या सांसद या विधायक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिनिस्टर भी है। अब जो लोग मिनिस्टर्स हैं इनको अपना एक डिपार्टमेंट दिया जाता है कि भाई राजनाथ सिंह जी आप डिफेंस मिनिस्ट्री संभालेंगे, सो ऑल दी ही विल हैव अ सेक्रेटेरिएट फॉर हिमसेल्फ, इनके पास स्टाफ होगा, डिफेंस की सारी डिसीजन मेकिंग पावर होगी इनके पास, एंड ही विल रन द इंडस्ट्री, रन हिज मिनिस्ट्री ऑन हिज ओन टर्म्स। ठीक है, उनको जैसा सूटेबल लगे। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने बोला कि भाई डिफेंस में मतलब लड़ाई हो गई, फॉर एग्जांपल अभी गलवान वैली में चाइना के साथ झड़प हुई। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे आर्मी वाले मतलब अटैक करने के लिए वी आर रेडी। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया, इसको एग्जीक्यूट करने का काम राजनाथ सिंह का है। ठीक है,
और ये जितने मिनिस्टर्स हैं इन सब की मिनिस्ट्री का हेड इज प्राइम मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इज द टॉप बॉस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि एग्जीक्यूटिव्स को बदला जा सकता है? Not for the हाँ सर, long. जो ये कैबिनेट मिनिस्टर सर बदलते ही हैं इनको तो। बदला जा सकता है। these हाँ बदला। executives these executives only enjoy their position till the time they enjoy the trust of they have the trust of the legislators। जो लोग लॉ बनाते हैं, जो लोग बाकी सांसद विधायक वहां बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, जब तक उनका ट्रस्ट है, अगर भाई फॉर एन एग्जांपल बीजेपी के जो भी पार्टी मेंबर्स हैं, इफ दे डू नॉट ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास कर देंगे, एंड अगर वो फेल हो गए उसमें तो पूरी एग्जीक्यूटिव गिर जाएगी, जिसे कहते हैं सरकार गिर जाना। ठीक है, तो ये एक हमारा एग्जीक्यूटिव समझ लीजिए आप। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, मतलब लेजिस्लेटिव मतलब जितने जीते, चाहे विधायक हो सांसद हो, जितने भी लोग अपने अपने एरियाज जीते, जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दीज आर लेजिस्लेटर्स। लॉ मेकिंग में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं वो आता हूं उस पर। एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, जो कि एग्जीक्यूट करते हैं। इन्हीं लेजिस्लेटर्स में से एक कोर ग्रुप होता है जो अपनी अपनी मिनिस्ट्री हैंडल करता है और यूनियन लेवल के या स्टेट लेवल के प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, देन थर्ड आर्म इज जुडिशरी। आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा व्हाट इज जुडिशरी। ठीक है, अब कैसे होता है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शनिंग, कि एक लॉ जैसे बनाना है। ठीक है, लेट्स से कि भाई ट्रिपल तलाक को बैन करना था। ठीक है, दिस इशू गॉट ह्यूज ऑपोजिशन, मतलब ह्यूज रोर अप्रोव फ्रॉम द ऑपोजिशन। तो इसको पास कैसे किया गया, व्हाट इज द, ये बताओ मुझे कि कोई भी लॉ अगर पास करना है तो कैसे होगा, यूनियन लेवल स्टेट लेवल? लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है सर, तो बहुमत होता है, President also. तो फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास आई गेस, फिर वहां से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट It stops at president. Lok Sabha, Rajya Sabha, then president. प्रेसिडेंट के हाँ, बाद बताया था ना Yes, कि sir. सुप्रीम कोर्ट मतलब के पास कब? प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं सकता, मतलब डिले कर सकता है पर उसको हटा नहीं सकता है गैस, अगर वो पास हो। नहीं सेकंड नहीं बारी नहीं में उसको हाँ करनी पड़ेगी, सेकंड टाइम में। भाई, ऐसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मत दो प्लीज, मुझे ऐसा मत करो यार तुम लोग। ठीक है, नहीं देखो इसमें ये मत बोलो जिसने भी बोला कि प्रेसिडेंट रोक नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वीटो पावर कहते हैं एक प्रेसिडेंट की, ही कैन विथ होल्ड दी बिल फॉर इनफाइनाइट पीरियड। ठीक है, विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। पढ़ना है इसके बारे में, वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है, सो आई विल गिव यू बेसिक फंक्शनिंग कैसे चलता है। कोई भी जैसे अगर एक बिल है, ठीक है, आई जैसे मैं आई वांट टू बैन ट्रिपल तलाक, तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ बिल। ठीक है, एक बिल मैंने बनाया कि हाँ भाई मेरे को ट्रिपल तलाक बैन करना है। ठीक है, इसको फिर मैं कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। आई कैन इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, आई कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, वेर एवर आई विश। ठीक है, यूजुअली लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज लोकसभा का मतलब पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। Rajya लोकसभा Sabha. में लोगों द्वारा निर्वाचित जाते हैं, राज्यसभा में नेता लोग ही निर्वाचित करके भेजते हैं। भाई ये निर्वाचित वगैरह काफी खतरनाक गुड, गुड होल्ड ऑन योर हिंदी, वेरी गुड। ठीक है, पता है सॉरी सॉरी। मतलब, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नॉट अबाउट बीइंग सॉरी, मींस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट श्योर वेदर योर इंटरव्यूअर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। हाँ नहीं, मेरे वो थोड़ा है उसी पे, तो मैं बोलूंगा ही कम। तुम डिबेट ज्यादा देखते हो ना, निर्वाचन आयोग वगैरह सब तुम बातें कर रहे हो। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि इस लोकसभा इज बेसिकली हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, एंड राज्यसभा इज बेसिकली जो कि मतलब इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यसभा में डायरेक्ट लोगों का कोई हाथ नहीं होता है। एंड राज्यसभा का मतलब जो स्टेट के, हर स्टेट का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे यूपी बीइंग अ लार्ज स्टेट, तो इनकी लोकसभा सीट, राज्यसभा और लोकसभा सीट ज्यादा होंगी, पॉपुलेशन वाइज भी और ज्योग्राफी वाइज बड़ा स्टेट है, तो इनकी लोकसभा राज्यसभा सीट ज्यादा होंगी। अब गोवा सिक्किम जैसे छोटे स्टेट्स की एक या दो सीट होती है। ठीक है, एंड दिस नंबर इज गोइंग टू चेंज। हमारा नया पार्लियामेंट भवन बन रहा है, आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर। Yes, sir. ठीक है, तो प्लानिंग चल रही है ऐसी, वट एवर आई हैव हर्ड दैट अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अब जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 700-750 की जाएंगी, क्योंकि नेताजी लोग बढ़ रहे हैं हमारे देश में। ठीक है, ऐसा ऐसा सुन रहा हूँ। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा के बीच में बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल गई आप लोगों को। ठीक है, Yes.
टर्म लोकसभा के एमपी का टर्म होता है 5 साल, मतलब 5 साल, एंड राज्यसभा में 6 साल। ठीक है, 6 साल याद रखना, 5 साल 6 साल, दोनों का 5 साल नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है, एक बिल आया, बिल को मैंने इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में मेजोरिटी से पास कर दिया। मतलब उसमें होता है एक स्पीकर होता है, हु इज द हेड ऑफ लोकसभा? लोकसभा स्पीकर, जिसको नहीं पता भाई, स्पीकर होता है, स्पीकर इज द हेड ऑफ लोकसभा। कौन है अपना करंट स्पीकर अभी? सर ओम बिरला। ओम बिरला, नाइस। ठीक है, तो स्पीकर इज द हेड ऑफ लोकसभा। स्पीकर के सामने प्रधानमंत्री भी नीचे बैठे होते हैं एज एन एमपी, नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो भाई स्पीकर ने क्वेश्चन पूछा, ऐसे बैठे हैं लोकसभा में, क्वेश्चन पूछा कि हाँ भाई ये बिल आया है करंट गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस बिल में कितने लोग हाँ बोलेंगे, कितने लोग ना बोलेंगे? तो सब लोग, जो लोग इन फेवर में होते हैं हाँ में, वो लोग हाथ उठाएंगे। तो अगर मेजोरिटी वोट्स आ जाते हैं तो दैट बिल इज कंसिडर्ड टू बी पास फ्रॉम लोकसभा। ठीक है, उसके बाद ये बिल फिर इंट्रोड्यूस होता है राज्यसभा के पास। ठीक है, अब राज्यसभा के लिए मैंडेटरी है, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं राज्यसभा में भी पास कराना जरूरी है। अगर राज्यसभा उसको, अब जैसे मनी बिल्स होते हैं, वो आता हूँ मैं काफी डिटेल में चला जाऊंगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ बेसिक फंक्शनिंग, कि फिर बिल को हम राज्यसभा में भी पास कराते हैं मेजोरिटी से। वहां से जब पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर अप्रूवल देते हैं, और प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हिज वीटो पावर, उनको अप्रूवल देना पड़ता है, बिकॉज प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, every decision which president takes is mostly by the advice of the council of ministers, headed by the prime minister। ठीक है, इसीलिए प्रेसिडेंट को सिंबॉलिक हेड बोलते हैं। मतलब हर कागज पे उनका थप्पा, उनका नाम, उनका सिग्नेचर होता है, बट डिसीजंस हमेशा उनके नहीं होते। ही इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज असिस्टेड बाय, सर जस्ट लाइक गवर्नर इन द स्टेट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वही मॉडल तो रेप्लिकेट किया है स्टेट में। बट वहां कैच ये आ जाता है कि मैक्सिमम स्टेट्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, मतलब राज्यसभा जैसा कोई ऑर्गन नहीं है उनके पास। यस ठीक है, सिर्फ 7 या 8 ऐसे स्टेट्स हैं। ताज तुम से मैंने कोड किया था, टी से तमिलनाडु, देन ए से समथिंग, देन जे से जम्मू कश्मीर, ऐसा करके 7 या 8 से कर लेना। 7 या 8 स्टेट्स है जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उनका प्रोसेस, जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका प्रोसेस ऐसे ही चलता है कि पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कराया, लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल टू लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इक्वल टू राज्यसभा एट स्टेट एंड यूनियन लेवल। ठीक है, तो उनका ऐसे चलता है कि भाई वो उन्होंने अपना बिल स्टेट लेवल पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कराया, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास कराया, फिर गवर्नर से अप्रूवल लिया, गवर्नर ने पास कर दिया तो लॉ इज फॉर्म। ठीक है, अब लॉ बन गया तो फिर वो पूरी कंट्री पे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये एक बेसिक फंक्शनिंग है हमारे देश की, कि कैसे हमारा देश चलता है। 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा लॉ पास करती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के अगेंस्ट है, जो मतलब भाई कल को सरकार आए कहे कि भाई सबका घर से निकलना बंद, कानून बना दिया। ठीक है, भाई उनके पास मेजोरिटी है, बीजेपी के पास फॉर एग्जांपल राइट नाउ दे हैव द मेजोरिटी, दे हैव द स्ट्रेंथ बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा। वो आए, उन्होंने बोला कि भाई सबका घर से निकलना बंद, तो क्या आप लोग मान जाओगे? और फिर वो डंडे चलाने लगे, फिर पुलिस से पिटवाने लगे, आप मान जाओगे? नहीं। तो इस केस में जुडिशरी का रोल आता है, फिर जुडिशरी कीप्स अ कांस्टेंट चेक ऑन द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके बेसिक फीचर्स को, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ये लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके ऊपर केस चल रहा है तो आपसे आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया। ठीक है, मतलब आप किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया। ये सब चीजें, अगर कोई ऐसा कानून हेस्टली पास होता है तो सर जुडिशरी हैज टू कीप अ चेक। सर फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं क्या? फंडामेंटल राइट को तुम नहीं अमेंड कर सकते हो, वैसे इतना डिटेल में भाई तुमसे नहीं घुसेंगे, वो इसके पीछे बहुत बहुत केसेस हैं। केशवानंदा भारती केस था, जो ये जो तुम क्वेश्चन पूछे हो ना, ये 50 साल हमारे देश में इस पे केसेस चले। ठीक है, तो ये इतना वो नहीं घुसेंगे, बिकॉज अगर आई एम नॉट श्योर कि मतलब इतना, दिस इज नॉट यूपीएससी एग्जाम, दिस इज जस्ट एन एमबीए एग्जाम, तो उतना उनको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डीप में अभी क्या, और आदमी जाएगा अभी तो राज्यसभा की पावर्स तुमसे पूछ लेगा, स्पेशल पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट कौन से बिल्स रोक सकता है, कौन से नहीं रोक सकता है। जैसे मैंने मनी बिल बताया, ठीक है, मनी बिल होते हैं मतलब फाइनेंशियल पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अगर वो अपना मनी बिल जो कि बजट प्रेजेंट करते हैं,
अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए तो वो पास होंगे। राज्यसभा मनी बिल को रोक नहीं सकती है कभी भी, ठीक है। बाकी सारे बिलों पे राज्यसभा जो है अपोज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। मनी बिल उनको पास करना ही करना है, बिकॉज चुनाव जीत के आए हैं, पैसा, फाइनेंशियल पावर उनको मिलेगी, वो डिसाइड करेंगे कैसे देश में क्या इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये एक हमारे कंट्री की, आई एम श्योर दैट भाई हमारे कंट्री की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मिली, हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री वर्क्स, ठीक है। तो आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि भाई राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी क्या है, तो यू शुड नो। स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या डिफरेंस है, ये सब आप सब लोग बता लोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. 3 ही ऐसा आए हैं अभी तक। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म हाउ आवर कंट्री वर्क्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। देन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब हु वाज द फाउंडिंग फादर्स, एक तो नाम ले दीजिए, सब लोग जानते होंगे। B.R. Birla, sir. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, Dr. J.B. B.R. कृपलानी। ठीक है, और ऐसे बहुत भी नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे उस कमेटी में, ठीक है। तो इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, इन्होंने 2 साल 11 महीने लगभग क्लोज टू 3 इयर्स का टाइम इन्होंने लिया था, ठीक है। 26 नवंबर 1946 को दे हैड कंप्लीटेड दिस प्रिपरेशन। इतना नहीं पूछेंगे, आई डोंट थिंक इतना पूछेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना जान लो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स, कैसे हमारा देश चलेगा। हमारे फाउंडिंग फादर्स वर वेरी स्मार्ट, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत सारे देशों के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने स्टडी किए। स्टडी करने के बाद दे टुक द बेस्ट थिंग्स आउट ऑफ एवरी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दोज आर द बेडरॉक प्रिंसिपल्स, अ बुक जो एक दिशा देती है, डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन आवर कंट्री विल बी रनिंग, कैसे हमारा देश, ठीक है। इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, जस्ट बेसिक आइडिया बता रहा हूँ बस। इसमें बहुत चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स व्हिच एवरी सिटीजन शुड एंजॉय, ठीक है। कि भाई आप संगठन, मतलब यू कैन फॉर्म एसोसिएशंस, ठीक है। तुम्हारी भाषा में विनय, संगठन बनाना, ठीक है। देन उसके बाद ठीक है, यू कैन राइट टू फ्रीली मूव एनीवेयर इन द कंट्री, इन एनी स्टेट, राइट टू रिसाइड इन एनी स्टेट, ठीक है। देन राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस बता दिया मैंने, राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी वगैरह, ये सब बहुत चीजें आती हैं, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिसको बनाया गया कि भाई इसके बेसिस पे ही हमारे लॉज बनेंगे। हमारे जितने लॉज बनते हैं, ऑल द लॉज आर अलाइंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मुझे फटाफट वो बता दो, क्या पूछा था मैंने, एम्बलम का मैंने पूछ लिया था। एम्बलम कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका वगैरह। नेशनल एम्बलम फ्रॉम वेयर इट इज टेकन? अशोक चक्र को अशोक चक्र क्यों बोलते हैं? सर वो अशोका के इंस्क्रिप्शन से लिया है शायद। नॉट फ्रॉम अशोका Exactly, sir. मतलब अशोका के, हाँ, सिंबल्स, इट इज वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ अशोका, ओके। तो हु वाज अशोका? भाई इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन, बार बार बोल रहा हूँ, सब लोग बोलते रहो जो भी है दिमाग में, जितना भी आपको आता है, डोंट हेजिटेट। आप बोलोगे, आई एम नॉट होल्डिंग यू गाइस, जो भी है दिमाग में, आई एम श्योर बचपन में सबने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है। Sir, I know. हाँ, एक टाइम पे रूलर थे शायद सम्राट अशोका। Sir, I know a little bit about it. He was the grandson of Prithvi. ग्रैंडसन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। Yes, sir. चंद्रगुप्त मौर्य। Sorry, yes, sir. Chandragupta Maurya. पृथ्वीराज चौहान was born in means he was around in the 1900 to 1000 AD, and
Chandragupta Maurya and Ashoka was there. They were around 300 and 200 BC. ठीक है, तो लगभग 1000 साल का अंतर है उन दोनों के बर्थ में। ठीक है, Yes. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, गुड। ठीक है, और He was Sir, I was about to son say of Bindusar. Prithviraj Chauhan. नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला ना इंटरेक्टिव सेशन है, आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू, नोबडी इज जजिंग यू हियर। सब यहाँ कोरे कागज हैं। ठीक है, जो चुप हैं वो इसीलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें नहीं आता है। ठीक है, सो डू नॉट हेजिटेट, आप बोलिए जो भी है, आई विल करेक्ट यू। मैं एक बार अगर आप भी बोल रहे हो, अगर मैं उसको सही करूंगा तो यू विल हैव दैट स्टक इन योर माइंड हमेशा के लिए। क्या Exactly, भाई, sir. हाँ, Yes. नाउ यू विल नेवर फॉरगेट कि No, अशोका sir. पृथ्वीराज चौहान डायनेस्टी में कितना अंतर था। ठीक है, Yes, sir. एनीबॉडी एल्स? So he was son of Bindusar. हाँ, ठीक है, राइट। So basically, he belonged from Maurya dynasty. Maurya dynasty is the first powerful, first, or maybe you can call it the first. चलो ठीक है, first बोलो, first most powerful dynasty of India. ठीक है, it was founded by Chandragupta Maurya with the help of Chanakya. सब जानते होंगे चाणक्य कौन है। So he was known for non-violence after, like he gave up violence after the Kalinga. That was, And he adopted Buddhism, है। हाँ, spread of Buddhism. हाँ, ये Yes. मूवी मैंने भी देखी है ना। ठीक है, और तो मौर्य डायनेस्टी वाज द फर्स्ट पावरफुल डायनेस्टी, ठीक है, ऑफ इंडिया। इनसे पहले नंदा डायनेस्टी भी थी, नॉट वेरी पावरफुल, और दे वर पावरफुल बट नॉट, उनका मतलब टर्म काफी लंबा नहीं था, दे वर नॉट एबल टू रूल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो मौर्य डायनेस्टी स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। Chandragupta Maurya, after his retirement, he joined Jainism and he promoted Jainism. Yeah. Then came Bindusar and Bindusar के बेटे थे अशोका। अशोका adopted Buddhism. ठीक है। And if somebody asked you, Ashoka was also means he was a great ruler जिन्होंने बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया है। ठीक है, तो एक ही डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी में अशोक ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया है एंड उनके दादाजी चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को प्रमोट किया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि ये रिलीजन्स को बूस्ट कहाँ से मिला, तो इन रिलीजन्स को बूस्ट इन्होंने दिया, और भी दिए बट प्रोमिनेंटली इन्होंने दिया। ठीक है, तो इसके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब हाउ अशोका यूज टू रूल वाज कि मतलब हर सिटी, हर स्टेट में जो भी इसकी टेरिटरी में आता था, ही यूज टू एम्प्लॉय अ पिलर देयर। एक रॉक का पत्थर बनवाता था, मोनोलिथिक स्टोन, मतलब एक सिंगल स्टोन का पत्थर बनाया, उस पर कुछ कुछ लिख दिया कि दीज आर द रूल्स फॉर द पीपल ऑफ क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर स्टेट या दिस पर्टिकुलर कंट्री, जो भी मेरे अधीन आते हैं, जो भी मेरे राज्य में है, उनके लिए ये रूल्स हैं। तो अशोक चक्र, जो उसका चक्र है, दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट। एंड द लायन कैपिटल, जो उसका सिंबल था, मतलब सिर्फ लायन नहीं होते थे उसके कैपिटल पे। कैपिटल क्या होता है, जैसे पिलर बना, उसने एक पिलर, आप लोग घर में अपने पिलर देखते हो, एक नॉर्मल पिलर है, उस पिलर पे लिखी जाती थी बातें, और उस पिलर के ऊपर एक कोई जानवर बना होता, बीट बुल, बुल भी हो सकता है, डियर भी हो सकता था, एंड आपके लायन भी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये वाला जो लायन कैपिटल है, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि हमारे देश का ये प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह, मतलब our country is represented by this particular symbol. This was founded at lion capital of सारनाथ, बोलते हैं इसको। सारनाथ कहाँ पे है? It is near Varanasi. Right, absolutely, यूपी। ठीक है, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ बोला जाता है इसको। ठीक है, अब ये बताओ कि I don't know whether this is relevant. चलो ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमने बात कर ली अपने एम्बलम के बारे में। और कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आ रहे हो, जो आप लोगों को लगता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बार पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, मतलब क्विकली मैं कैसे समराइज करूं, इट टेक्स टाइम टू स्टडी, बट जेके का कोई अंत नहीं है सर, लाइक एंड नहीं है वही कोई। कह रहा हूँ, इट इज अ वेरी 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 डायनेमिक पार्ट है भाई। मतलब या तो आप पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ रहे हो, नहीं तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आप जितना पढ़ के जाओगे, आई एम टेलिंग दिस टू एवरीबॉडी इन सच अ शॉर्ट टाइम, आई हैव गिवन यू द ट्रिक। पुट डाउन द मंथ, सर्च करो, आप सर्च करो करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त 2022, जितना आए टेक अ ग्लिम्प्स। जरूरी नहीं है आप हर सवाल का जवाब दे लोगे। मैं जो यहाँ पे बातें आपके साथ इस सेशन में शेयर कर रहा हूँ, दैट इज कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता हो कि भाई आपसे कोई ये पूछे कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है,
इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या डिफरेंस है, तो ये सब चीजें भी एटलीस्ट यू शुड नो, मतलब यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या डिफरेंस है, ये सब इतना पता होना सर चाहिए। अब ये तो बेसिक ऐसा हो रहा है सर कि सर सारे क्या इंटरव्यूज जो है वो पूरे जनरल एबिलिटी ड्रिवन हो रहे हैं, पूरा पूरा वही चल रहा है इंटरव्यूज में। जनरल So बिल्टी क्या कहते हैं, एक दो क्वेश्चंस I बताओ। was I was asked about two female presidents of India and what is the currency of Japan, Europe, हम्म UK, US, Greece. What हम्म is the valuation right मैं now वही तो कह रहा हूँ, आई एम with जस्ट respect to Indian? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से, दैट इट इज अ वेरी डायनेमिक टॉपिक, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। Sir, I also want to share one experience. I हाँ। just gave my I'm Rohtak interview. So हम्म over there, I read all those things like government ka and whatever new, issues, current issues are going on right now, presidents, prime minister, CMs, till the state. I read everything. So the questions they asked me on GK were my extemper was historical relevance of Kanpur because I belong to Kanpur, हम्म and all the GK was all about Kanpur, and हम्म my university's name is Guru Gobind Singh Indraprasth University. So who is Guru Gobind Singh? Like tell about him. So I was like, हम्म। matlab, after reading everything, they came down to city, and about which I didn't read a lot, historical relevance and all. So yeah. नहीं भाई, अपने स्टेट के बारे में प्लीज, दिस इज जस्ट अ जेंटल रिक्वेस्ट, सबको अपने स्टेट के बारे में कुछ मतलब पता होना चाहिए भाई। कितने लोग यहाँ पे, कौन कौन के, सभी सभी यूपी से हैं यहाँ पे, मतलब कुछ राजस्थान वाले भी थे यार, एक दो आई रिमेम्बर। जो राजस्थानी Yes, sir, you can. हाँ, यूपी एंड राजस्थान वाले ज्यादा है ना यहाँ पे। भाई वही अपने है। पढ़ लेना भाई अपने स्टेट के बारे में, ठीक है, कि मतलब अब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा कितनी है, बट ये हिस्टोरिकल रेलेवेंस वाला जो क्वेश्चन है ना, इट इज वेरी वेरी नाइस एंड वेरी डीप क्वेश्चन आज ये इंटरव्यू में आपसे पूछा गया है। भाई यू गाइस गिव मी पॉइंट्स, व्हाट इज द मतलब हिस्टोरिकल रेलेवेंस ऑफ राजस्थान, बताओ भाई, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन राजस्थान वालों, और यूपी वाले अपने पॉइंट पूछिए। और तो मैंने पूरे स्टेट की बात कर ली है, आप अगर कहें Historical इंटरव्यू, relevance of Rajasthan can be कैन भी नहीं बोलना है, नो कैन भी, okay. ये कैन भी नहीं, मतलब जो है वो है, हिस्ट्री इज हिस्ट्री, कैन भी का मतलब क्या होता है, सर मतलब यहाँ पे शायद बहुत ऐसा। हमें बहुत डाउट है। सारे वहाँ के जो रूलर थे फोर्ट्स वो बने हुए हैं, मतलब यहाँ से रूलर्स मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पे। राजपूताना से राजस्थान में एक ना। एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके, गो अहेड हर्षित। सर यहाँ से रूलर्स बहुत सारे निकले हैं और यहाँ पे फोर्ट्स भी बहुत है, मतलब हिस्टोरिकल जो कल्चर है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। मतलब आप किसी भी सिटी में चले जाओगे, बीट बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, आपको फोर्ट्स मिल जाएंगे बहुत सारे। ओके, रोल ऑफ राजस्थान एंड राजपूताना किंगडम इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ब्लैंक। हाँ भाई, कौन बोल रहा था फिर, विनय, राजपूत विनय बोल रहा था मेनली कुछ, है ना? रूलर रहे हाँ, हैं। यस सर। विनय बता, तुम बोल रहे थे ना कुछ राजस्थान के बारे में। हाँ सर, मेनली रूलर यहाँ राजपूत रहे हैं, तो वहाँ राजपूताना से राजस्थान, लाइक इससे पहले इसका नाम एक राय राय कुछ करके था, तो वो राजस्थान हो गया, और मेनली इसके कुछ राजपूताना प्रांत है। रूलर्स की बात तुमने शुरू की तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मतलब राजपूत डायनेस्टी कब से स्टार्ट होती है, हु वाज द फाउंडिंग राजपूत रूलर ऑफ इंडिया, मतलब पहला पहला तो नहीं पता सर। राजपूत डायनेस्टी, तुम्हें पता है ना, दिल्ली हरियाणा राजस्थान इन क्षेत्रों पे काफी राज किया उन्होंने, तो कौन था, किसके डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ, तो ये राजस्थान वालों को पता होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली में आई गेस तोमर राजपूत थे, अनंग पाल तोमर आई गेस, जिन्होंने दिल्ली पे राज किया था, तोमर डायनेस्टी इसको बोलते हैं। तोमर डायनेस्टी के बाद आई थी चौहान डायनेस्टी, जो पृथ्वीराज चौहान वाली थी, तो ही वर्ल्ड एज मतलब इनको राजपूत पीरियड बोलता है। राजपूत पीरियड एंडेड प्रोमिनेंट, मतलब पूरी कंट्री पे इनका राज था, बट दिस पीरियड एंडेड विथ द डिमाइस ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, राजपूत रूलर्स उसके बाद भी रहे, एंड आई एम टेलिंग यू दिस कि राजपूताना का या राजस्थान का क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, दे वर ऑल प्रिंसली स्टेट्स। पढ़ो, हम्म। पढ़ो व्हाट इज प्रिंसली स्टेट्स, पढ़ो। इनको मुगलों के समय में भी वतन जागीर दे दी गई थी, इनको ब्रिटिशर्स ने भी प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। इनके स्टेट में चुनाव नहीं होते थे, ये किंग होते थे, मेवाड़ का अलग किंग है, मारवाड़ का अलग किंग है। जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था, उस टाइम में देवर गिवन अ चॉइस, ऑल द प्रिंसली स्टेट, ठीक है, नॉट ओनली ऑफ राजस्थान बट पूरे अक्रॉस कंट्री 600 समथिंग प्रिंसली स्टेट्स थे। ऑप्शन दिया था, यू कैन इधर ज्वाइन पाकिस्तान, यू कैन इधर ज्वाइन
इंडिया एंड और यू कैन मेंटेन योर ओन कंट्री, यू कैन मेक योर ओन कंट्री, ऐसा ऑप्शन दिया था इनको। अब यहीं से मेरा एक क्वेश्चन निकल करके आया था, व्हाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। बताओ भाई, किसको किसको आंसर पता है? व्हाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ आवर कंट्री? तो ऐसा क्या उन्होंने किया? उनको लौह पुरुष क्यों बोलते हैं भाई? सर देयर इज Because सर्टेन he रिलेशन विद visited. निजाम्स एंड ऑल, कि उन्होंने निजाम्स को बोला था कि अगर रहना है तो भारत देश का हिस्सा बन के रहो वरना बाहर जाओ, ऐसा करके कुछ था। निजाम नहीं, प्रिंसली स्टेट। अच्छा ठीक है, ऐसा। प्रिंसली स्टेट मतलब ब्रिटिशर्स देखो पूरे इंडिया पे राज नहीं कर रहे थे, वो उन जगह पे राज कर रहे थे जहां पे कोई राजा नहीं था, या जिस राजा को वो ओवरथ्रो कर चुके थे। दे न्यू देयर आर सर्टेन किंगडम्स जहां पे रूल कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। राजपूताना किंगडम, मैसूर, नीचे निजाम जहां बात करो हैदराबाद, मैसूर, वो वाला एरिया, गुजरात कश्मीर। में, ठीक है, कश्मीर, ये सब किंगडम, तो इनको इन्होंने क्या किया था ना, प्रिंसली स्टेट बना के छोड़ दिया था। तो मतलब आप रूल करो, आप राज करो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। जब पार्टीशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ब्रिटिशर्स ने ये ऑप्शन दिया कि भाई आप प्रिंसली स्टेट में हो, आप ब्रिटिश कंट्रोल के डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट अंडर कंट्रोल हमारे नहीं, तो वी आर मतलब दो नेशन बन रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान, यू हैव द ऑप्शन, आप या तो इंडिया ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, और या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ कि सभी लोगों ने मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पेशली, he went to every princely state, he convinced them to be a part of India, and same efforts were done by Muhammad Ali Jinnah as well. He also tried to convince by bribes, by influences, that please join Pakistan, be a part of Pakistan. हाँ सर, ठीक है, राजा हरि सिंह जो सर कश्मीर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने मना कर दिया था, he wanted to यस stay सर। independent। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया था, गुजरात ये हैदराबाद के निजाम ने मना कर दिया था, एंड गुजरात के एक रूलर थे उन्होंने भी मना कर दिया था। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, बिकॉज आउट ऑफ समथिंग 554 या 664 प्रिंसली स्टेट, सारों को इन्होंने इंटीग्रेट कर लिया था इंडिया में। ठीक है, इसलिए इनको लौह पुरुष बोला जाता है। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्या है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? बताओ भाई, बताओ बताओ। वल्लभ भाई पटेल की 3000 फुट ऊंची प्रतिमा और स्टैच्यू कहाँ पे है? गुजरात में है, वडोदरा से थोड़ा आगे। ठीक है, जिसको नहीं पता था वो तो ये सब नोट मतलब या तो दिमाग में एटलीस्ट रखते जाए ये सब। ठीक है, इसीलिए उनकी मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है, बिकॉज ही यूनाइटेड आवर कंट्री। ठीक है, बहुत बड़ा रोल था उनका। ठीक है, अब चलो भाई मुझे वो बताओ, यूपी वाले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ यूपी। अभी मैं सिटी वाइज भी आऊंगा, जितने लखनऊ कानपुर वाले हैं उस पर भी आऊंगा मैं। सिटी में ताजमहल was constructed and मतलब वो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स में 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट had a major impact in UP. It started in Meerut and कानपुर had a very big significance over there. So कानपुर में British forces ने मतलब like they had given up on the fight over here, and that happened. Kakori Kand also happened in UP. Historical relevance. और पीछे जाइए हिस्ट्री में, श्री राम कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या, या अयोध्या, श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? या मथुरा। यूपी, मथुरा। और सर पीछे जाओ। सर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी हम्म, कानपुर में। हाँ, तो और पीछे जाओ, मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री भाई मुगलों से ही नहीं शुरू है हमारी हिस्ट्री, सीधे ताजमहल पे आ गए, सीधे इंडिपेंडेंस पे आ गए, नहीं भाई, और पीछे जाओ। ठीक है, और जैसा माहौल चल रहा है, श्री राम के नाम पे 2-4 पॉइंट मिल जाएंगे। सीता जी stayed in UP for a very long time, चित्रकूट में, तो ठीक है, तो if somebody asks you the historical perspective, especially of UP, start by Lord Rama straight away. yes, ठीक है, this place has given birth to yes, maybe God or good ruler, be it श्री राम, श्री कृष्ण, सब यहीं पैदा हुए। ठीक है, सब यहीं अपने सारे इन्होंने रूल किया, लोगों को कैसे रहना है, जीने का लाइफस्टाइल सिखाया, सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद और आगे आओ अब हिस्ट्री में, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे भाई? सर नैमिषारण्य। गौतम बुद्ध was born in Lumbini, it is near Nepal,
बट गौतम बुद्ध उस टाइम पे नेपाल नहीं हुआ करता था ऐसा, इट वाज एन इंटीग्रेटेड, मतलब आप लोगों को ये पता हो कि इट वाज एन इंटीग्रेटेड, मतलब पूरा अखंड भारत जैसा था मामला। तो गौतम बुद्ध ने भी यूपी में अपना सबसे पहला लेक्चर दिया था सारनाथ में, Yes. फर्स्ट एनलाइटमेंट लेक्चर। ठीक है, तुमने ये तीन लोगों का नाम लिया ना, लोग समझ गए भाई सामने वाला भैया इनको बहुत आता है, इनसे अब अगला क्वेश्चन चेंज करने का है। ठीक है, ये तो मैं मतलब मैं भी यूपी से हूँ तो बहुत जानता हूँ ऐसा, इसलिए बता रहा हूँ, ये सब बहुत टच डाउन पॉइंट्स हैं कि भाई पहला सरमन पहला लेक्चर उन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। ठीक है, एनलाइटमेंट उन्होंने बिहार में अटेंड किया था, अगर कोई यहाँ पे बिहार से है बोध तो गया। बोध गया राइट, बोध ट्री। ठीक है, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी कंसिस्टेड ऑफ यूपी बिहार। ठीक है, देन महाभारत के मतलब मैक्सिमम रूलर्स यूपी बिहार हरियाणा दिल्ली के एरिया के थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये ना पता हो, हस्तिनापुर भी यूपी में ही है, नियर मेरठ। ठीक है, द द होम ऑफ कौरवोस एंड पांडवास। ठीक है, तो और पीछे जाओगे हिस्ट्री में, उसके बाद फिर आओ तब मतलब तब आओ ताजमहल पे, अभी और बहुत चीजें हैं, धीरे धीरे आएंगी ऐसे। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको यूपी का पता होना चाहिए, रोल ऑफ यूपी इन नेशनल मूवमेंट। चलो मेरे को राजस्थान वाले भी बता दो कि अपने स्टेट से मेरे को दो ही बता दो, चलो ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट किया। यूपी वाले 5 बताएं। हो गए राजस्थान वाले, गो। चलो देख लेना इसको, यूपी वाले गो, बताओ भाई। चौधरी चरण लाल सिंह बहादुर शास्त्री, एयरपोर्ट है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, हम्म। वैसे लाल बहादुर शास्त्री बिहार के थे, बट ठीक है, दिए पॉइंट्स तुमको, चलो। और गो अहेड गो अहेड गो अहेड, यूपी वाले। जवाहरलाल नेहरू, हाँ ऐसा कह सकते हैं दैट ही वाज बोर्न ब्रॉट अप इन इलाहाबाद। ठीक है, मतलब मैं तुम लोग को ये बता दूं कि एक सर्च करना दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कितने हैं, मोदी जी कौन से हैं, 14वें या 15वें हैं, जो भी हैं, 7 या 8 प्राइम मिनिस्टर्स बिलोंग टू यूपी। Seven of them are from UP. 7 ऑफ देम आर फ्रॉम यूपी, कौन से 7 हैं देख लेना आप। ठीक है, सर इन ये वाले क्वेश्चन में लाइक हु बिलोंग्स टू यूपी प्राइम मिनिस्टर वाइज, तो वो उनका मतलब बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग होता है कि जहाँ से लाइक यू फॉर द बर्थ इलेक्शन प्लेस, बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस। तो सर बर्थ प्लेस में तो इट वाज शोइंग नरेंद्र मोदी आल्सो, तो मतलब ही वाज बोर्न इन यूपी। आई सर्च दैट, मैंने मतलब ये आंसर कहीं पे देखा था, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉग में था नरेंद्र मोदी भी। ऐसा। यस सर, तो मतलब आई थॉट कि वो किस उसमें है। पक्के गुजराती हैं भाई। नहीं भाई, ये चेक करना है, मैंने ये नंबर पढ़ा था बस। सर 9 है एक्चुअली। गुजरात में ही पैदा हुए थे वो, मोदी जी। ठीक है भाई, मैं मोदी जी का कंफ्यूज हो गया भाई, मैंने कहा मोदी जी यूपी में कब से पैदा हो गए, खैर। वो So सन्यास wait, के टाइम I'll पे। share the picture with you that I found. I just found नहीं, it. आई जस्ट गूगल इट, लीव इट, मैंने गूगल कर लिया। ठीक है, ही वाज बोर्न इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र Yes. एंड वाइल गुजरात। तो वो छोड़ दो। ठीक है, तो अपने स्टेट के बारे में मतलब आप लोग जो भी हो, अपने शहर से भी हो, कानपुर के बारे में भाई आप कानपुर की बातें जब भी होंगी तो आप तात्या तोप के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस में उनका क्या रोल था। लखनऊ वाले, हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रॉम लखनऊ इन द 1857 रिबेलियन। चौधरी चरण 1857 रिबेलियन। 1857। Sorry, sir. Can you please repeat the question? Who was the leader from Lucknow and Kanpur in the 1857 rebellion against the British government, first war of independence? सर नाना साहेब। हाँ, नाना साहेब पेशवा, राइट, फ्रॉम कानपुर। बताओ भाई, लखनऊ वाले। बेगम हजरत महल का नाम सुना? यस सर। कौन कौन है लखनऊ से यहाँ पे? हुँ? जितने भी लोग हैं जो बोल नहीं रहे हैं, जो लखनऊ से है ना, इन पार्कों में आप बहुत घूमे हैं। यस। ठीक है, ये नहीं पता है आपको कि ये कौन थे? ठीक है, तो ये देखिए, डू वांट गाइस कि मैं एक और क्लास लूं आप लोगों के साथ ऐसे, डू वांट लाइक दिस? Yes, sir. यस सर, हाँ डेफिनेटली। yes sir. ठीक है, सर मतलब आई मुझे एम लग रहा है सबसे ज्यादा इन्हीं क्लासेस की जरूरत है।
नहीं नहीं, I have exceeded my time limit, that is why I'm asking. It was supposed to be an hour class, but बहुत ज्यादा खींच लिया मैंने, इसलिए मैं stopping this session here. मतलब मैं वही बता रहा हूँ again कि this is a very dynamic aspect. ठीक है, क्या कहाँ से पूछ ले नहीं पता, बट yes I'm sure, मतलब and this has to be interactive. This girl यशस्विनी और I'm not sure, इसने बताया कि भाई इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, so we went in that direction. ठीक है, मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ है, मैं आपसे हर एस्पेक्ट पे, हर टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि एटलीस्ट अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कंट्री, हाउ वी पोजेस दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, करंट में आपसे पूछ लिया कि भाई इस टाइम पे क्या कहते हैं, कौन सा अभी एयरक्राफ्ट कैरियर रिटायर किया गया था, यू माइट नॉट नो, एंड दे विल नॉट, मतलब उनको बुरा नहीं लगेगा, नाइदर दे विल बी रिजेक्टिंग यू ऑन बेसिस ऑफ वन रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई हाँ अशोक चक्र नेशनल एम्बलम क्या है, ये भी आप अशोक चक्र नहीं बता पाते हैं, देन दिस क्रिएट्स अ वेरी बैड इमेज कि भाई आप इंडिया में रह रहे हो, एटलीस्ट यू शुड बी दिस मच अवेयर अबाउट योर कंट्री। ठीक है, तो इन लाइंस का तो हमें बिल्कुल डिस्कशन जरूरी है। पॉलिटी पे तो हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया, आई होप एवरीबॉडी नोज नाउ, हैज एवरीबॉडी द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे काम होता है, स्टेट और यूटी में क्या डिफरेंस है, ये सब आई गेस सबको समझ में आ गया ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये वाला सब लोग एक बार प्रिपेयर करना, व्हेन दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू दिस गर्ल कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल रेलेवेंस, ठीक है, एंड नॉट जस्ट हिस्टोरिकल रेलेवेंस, यू शुड नो अबाउट योर स्टेट एंड योर सिटी, इन दीस टर्म्स आई विल टेल यू द लाइंस। एक आप हिस्ट्री पढ़ लो उसके बारे में, तो स्टेट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी, ठीक है, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है, जैसे यूपी में क्या है भाई, आईएम लखनऊ भी है, आईआईटी कानपुर भी है, ठीक है, तो टॉप यूनिवर्सिटीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और कोई बहुत बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सम रिसर्च सेंटर्स, ठीक है, कुछ ऐसे अगर कुछ है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद टूरिस्ट स्पॉट्स आपको पता होने चाहिए। जिसने किसी ने बोला कि आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ, तो उससे तुरंत ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इमामबाड़ा किसने बनवाया, क्या किसी को पता है यहाँ? यही निकलेगा इंटरव्यू में बस। name is Chote Imambara mein there's a portrait of the person who made it. नाम नहीं आता। आई एम सॉरी। मे बी आजम खान बोल रही हो सर वो। नहीं 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 भाई यार, तुम रामपुर बहुत पहुंच बड़ा सा उल्ला वो लगा था कुछ नाम है। बड़ा नाम नहीं याद आया। आई गेस असफुद्दौला और वाजिद अली शाह, इन दोनों में से कोई एक है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, ठीक है, चेक कर लेना, या तो असफुद्दौला है या फिर वाजिद अली शाह है, इन्हीं दोनों में से, दीज वर द लास्ट टू नवाब्स ऑफ लखनऊ, ठीक है। तो आपसे ये टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में पूछा जा सकता है, द फेमस टूरिस्ट स्पॉट, थैंकफुली लखनऊ में कम है, यूपी की बात तो छोड़ दो, यूपी में तो बतेरे हैं, लखनऊ में कम है, कानपुर में भी थोड़े कम है। कानपुर में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भाई, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से है, ठीक है, जो भी कानपुर वाले हैं यहाँ वो जानते होंगे, पढ़ लेना भैया। सर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी है। हाँ, तो फेमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स पता होने चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है, और एक वो भी देख सकते हो कि मेजर ऑक्यूपेशन क्या है आपके स्टेट का, इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी क्या है आपके स्टेट की, ठीक है। आप आई एम श्योर भाई यूपी वाले कॉर्पोरेट सेक्टर तो नहीं बोल सकते, बहुत गरीबी है कॉर्पोरेट सेक्टर की हमारे यहाँ, ठीक है, तो हम लोग क्या है, एग्रीकल्चर बेल्ट है, एग्रीकल्चर इज प्राइम सर आई वाज इवन आस्क्ड कि कानपुर में लेदर फेमस है, तो कौन सा लेदर फेमस है? नहीं भाई, इन सवालों का जवाब नहीं बिना होते, डिटेल में। इन सवालों के जवाब नहीं होते, जवाब होते हैं हमें नहीं पता होते, ठीक है, मींस यू गेव अ गुड इंटरव्यू, दैट इज व्हाई यू वर ग्रिल्ड एट दिस लेवल, ठीक है, ग्रिलिंग इज गुड। I think my CATs went well, but the GK section was very bad because of all this. मतलब I didn't have a lot to say in this. So नहीं, कानपुर को भाई मैनचेस्टर बोलते थे, मैनचेस्टर Manchester of India. हाँ, I gave that wrong answer. He asked me why was it called Manchester of India, so I gave the wrong answer of that. क्या बोला तुमने? Leather industry की वजह से। वो कॉटन इंडस्ट्री की वजह से, कॉटन की कॉटन वजह से, टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल की वजह से। ठीक है भाई, लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह। ग्रेट, कानपुर के एयरपोर्ट का नाम बता दो भाई, जल्दी जल्दी। ये देखो, इक्की दुक्की चीजें ही पता होनी चाहिए। राजस्थान के एयरपोर्ट का नाम क्या है? जयपुर के एयरपोर्ट का नाम बताओ भाई। राजस्थान छोड़ो, मैं स्पेसिफिकली जयपुर का अडानी ने खरीद लिया तो शायद अडानी के नाम पे ही होगा। अबे भक अडानी ने भाई मेरे वो प्राइवेटाइज उसने लिया है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैं नाम पूछ रहा हूँ।
जैसे लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जयपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? आइडिया नहीं सर फिर। चलो आज तो गूगल करो जल्दी से। आई गेस कुछ सवाई मान सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मेरे ख्याल से। चेक कर लो एक बार, फटाक से गूगल करो जो भी कर रहा है, हर्षित या विनय में से। तो संगीर एयरपोर्ट। कानपुर का बता रहे हो? और कानपुर का गणेश जयपुर। शंकर विद्यार्थी सांगानेर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट, क्या है? कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन से सांगानेर गणेश शंकर दिखता है, विद्यार्थी? सांगानेर एयरपोर्ट ऐसा कुछ करके नाम दिखा है। चेक करना यार, सवाई मान सिंह तो नहीं है। मुझे जहां तक याद है सवाई मान सिंह एयरपोर्ट था शायद जयपुर वाला। भाई ये विद्यार्थी मैं कौन थे? कहाँ गए विद्यार्थी? तो इनके नाम से मेडिकल कॉलेज भी है कानपुर। कौन थे? एक बार गूगल कर लेना। यस ठीक है, सर, बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह कौन थे? कहाँ गई सौम्या? And rest of the Lucknow people, who was चौधरी चरण सिंह? कौन बताएगा फटाफट? बता तो दिया, एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पे है। भाई ऐसा क्या काम किया था उन्होंने कि एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पे रख दिया? Sir, little bit I know he was the fifth Prime Minister of India. Yeah, there was a जनता गवर्नमेंट formed in 1978 to 79। ठीक है, उस बीच में ये थे, और he is also the CM of उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, सीनियर लीडर। ठीक है, तो ये देखो अपने स्टेट के बारे में मैंने बताया, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ठीक है, और क्या कहते हैं द टूरिस्ट स्पॉट्स ऑन द मेजर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज। और अगर ये किसी बड़े लीडर के नाम पे हो तो उन लीडर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। चंद्रशेखर आजाद कौन थे भाई? कानपुर वाले बताओ जल्दी से। वो चंद्रशेखर आजाद, ये कौन गाना बजा रहा है? इतना इंटरेक्टिव भी नहीं होना था भाई कि कोई गाना सुनाएगा मुझे। सर वो गली में आए हैं इसलिए शायद वहां बज रहा है। कोई बात नहीं भाई, बताओ चंद्रशेखर आजाद कौन थे? ओपन क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। ही इज अ वेरी फेमस प्राइम मिनिस्टर। अबे बैक रेवोल्यूशनरी। ही इज अ वेरी फेमस रेवोल्यूशनरी थे सर। रेवोल्यूशनरी भाई, रेवोल्यूशनरी लीडर। सबको पता होना चाहिए हु इज चंद्रशेखर आजाद। शहीद चंद्रशेखर आजाद। वही नहीं सर, फ्रीडम फाइटर थे सर जो लाइक सर यूपी, सर कानपुर के पास उनका मरने वाला स्थल भी बना हुआ है, बदरका नाम से जगह है वो। मेरे ख्याल से पैदा कानपुर में ही हुए थे। उनका डेथ स्पॉट तो वो है इलाहाबाद में है, अल्फ्रेड पार्क, जहाँ पे उनको गोली मारी हाँ, गई। यस यस सर, वो बर्थ वाला कानपुर के पास। तो चंद्रशेखर आजाद बिलोंग टू हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA पॉलिटिकल पार्टी। भगत सिंह, क्या कहते हैं, सुखदेव, राजगुरु। राजगुरु इन लोगों के साथ काम करते थे, इनके लीडर थे। ठीक है, एंड काकोरी हत्याकांड में बहुत बड़ा इनका, काकोरी लूट कांड जो थे, हम सॉरी, उनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो अपनी यूनिवर्सिटी जिस नाम पे है भाई, जैसा ही तुमने बताया कि हमारे स्टेट में भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, छूटते ही क्वेश्चन आएगा कि हु वाज चंद्रशेखर आजाद? So he was a revolutionary. He was a freedom fighter. He was a revolutionary. He belonged from a party called Hindustan Republican Association, and they were extremists. ये लोग नॉन वायलेंस पे बातें नहीं करते थे। They believed कि वायलेंस से भी अगर हमें, मतलब इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि अगर वायलेंस भी यूज करना पड़े तो करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स को, मतलब इंडिया को आजाद कराएंगे। ठीक है, तो इन ग्राउंड्स पे अपने स्टेट के बारे में, अपनी सिटी के बारे में पढ़ लीजिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, टूरिस्ट स्पॉट्स, इकोनॉमी, फेमस इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, देन उनके बारे में थोड़ा थोड़ा, एंड देन क्या कहते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी हल्का फुल्का देख सकते हैं। मतलब जस्ट वो नंबर भाई कि कितनी, जैसे यूपी में लोकसभा सीट्स कितनी है, अगर चाहो तो। सर वैसे पूछा नहीं सर, जाएगा। ये तो स्टैटिक वाला पार्ट हो गया। चलिए, ये तो मान लीजिए पता है। मान लीजिए करंट वाली चीजों में अगर ब्लैंक हो जाते हैं तो सर वो इफेक्ट करेगा वहां पे? देखो करंट वाले के लिए मैं इफेक्ट कुछ नहीं करेगा। ठीक है, एवरीबॉडी नोज कि जीके ऐसा समंदर है जिसमें से एक लोटा पानी वो निकाल रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एक बूंद जो तुम्हें आता है वो उसी लोटे पानी का हो। ठीक है, तो nobody is going to judge you on that, but yes, current event में do one thing, if you are not able to give time, करंट इवेंट में द रीसेंट इश्यूज जितने हैं, जो ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है, वो तो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी। ठीक है, जोशीमठ का जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ट्विटर का भी सुना न्यूज आप लोगों ने? कॉर्पोरेट लेवल पे ट्विटर को किसने
वो किया था, परचेज किया अभी? एलॉन मस्क। Elon कौन था Musk, कौन था सीईओ ट्विटर का उससे पहले? Parag तो Agarwal. पराग अग्रवाल। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सब जो बिग इवेंट्स हुए हैं ना इधर इधर, ये आपको पता होने चाहिए। तो रीसेंट इश्यूज ऐसे करके सर्च कर लेना, मतलब ये देखो, ये हिट एंड ट्रायल वाला है, लेकिन द बेस्ट वी कैन डू इज आपसे क्वेश्चंस, आपसे इन्हीं पे बात की जाएगी जो रीसेंट इश्यूज चल रहे हैं देश में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो बोलो। सर ये ट्विटर वाला जो है, इस पे ओपिनियन अगर पूछेगा तो क्या बोल सकते हैं, मतलब फैक्ट्स बता दें सिर्फ ओपिनियन क्यों पूछेगा? कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। इसमें मतलब कोई टेक नहीं है भाई, एलन मस्क ने क्या किया, क्यों किया, ये किसी के समझ में, क्या सबके So समझ में this बहुत was an गई है। example topic in Rohtak interview. किसी का था, मतलब I got to know Elon Musk's Twitter. This was the example topic. ओके, ठीक है, तो एक्सटेम्पोर टॉपिक के लिए फिर अलग से हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, बट जीएस वाइज तो मतलब तुमसे इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मुझे लगता है। बट आई ट्रेंडिंग टू, मतलब उनसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू थिंक इलॉन मस्क बॉट ट्विटर? ठीक है, तो दे यू कैन प्रिपेयर सम 2-3 पॉजिटिव रीजंस, 2-3 नेगेटिव रीजंस कि वो बैकफायर कर गया। ठीक है, एंड देन मतलब मे बी उसका डिसीजन होगा टू, उसके एस्पिरेशंस होंगे टू बिकम CEOs ऑफ सेवरल कंपनी, स्टारलिंक जैसे वो सीईओ है स्टारलिंक का, टेस्ला, मतलब ही वांट्स टू हैव हिज फुट इन एवरी सेक्टर, बी इट ऑटोमोबाइल, बी इट स्पेस, बी इट ऑनलाइन सोशल मीडिया इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये उसके, आप ऐसा बोल सकते हो, एस्पिरेशन। ठीक है, बट दिस इज एन एक्सटेम्पोर टॉपिक, तो इसकी बातें अलग से हो पाएंगी, ऐसे नहीं, नॉट इन जीएस। ठीक है, तो गाइज आप लोग अभी इतना कर लीजिए, ये अपने स्टेट के बारे में ये सब, और जो मैंने ये सब बताया, अपना कंट्री की बेसिक मशीनरी कैसी है, ये सब आप समझ में होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, एंड एटलीस्ट रीड अबाउट योर स्टेट, जो पॉइंट्स मैंने बोले। ठीक है, आई विल ट्राई टू फाइंड सम मोर स्टैटिक टॉपिक्स जो कि रिलेट किए जा सकते हैं एंड कैन पॉसिबली कम इन योर इंटरव्यू, एंड देन वी कैन डिस्कस इट आउट इन सम अदर सेशन। एंड मीनवाइल यू गाइज शुड ऑल्सो, जैसे ये यशस्विनी ने जो इनपुट दिया कि इनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, the way we discussed, I stretched this class because of the questions asked to her in the interview. ठीक है, तो ऐसे आप लोग भी थोड़ा एक्सप्लोर करो कि और क्या क्वेश्चंस मतलब पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आपको क्या लगता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि नहीं, ये भी पूछा जा सकता है कि नहीं, मतलब बी फ्री, एकदम फ्रीली बिल्कुल आपको मुझसे डिस्कस करना है। मुझे जितना आ पाएगा मैं सब आप लोगों को बता दूंगा यहीं पे। ठीक है, बेस्ड ऑन माई जो भी नॉलेज है मेरे पास। ठीक है, मैं सब आप लोगों को गाइड कर दूंगा, बट फील फ्री टू डिस्कस एंड आस्क। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि भाई हाँ सर, आप, हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, सो यू जस्ट टेल मी, एंड maybe I'll guide you, if I think that that is important, that is relevant for your interview, then definitely I will, उस पे मैं कुछ ज्ञान दे दूंगा, I'll give you the direction how to read, how to study। ठीक है, तो I'm just summing up this class on a note that for current event आप लोग वैसे पढ़ लो। अगर आपके पास टाइम है तो जैसा मैंने बताया कि अगर मतलब आपने ये किया कि मंथली आपने डाला करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त 2022, और एटलीस्ट 6 महीने की आपने पढ़ ली। बट इफ दैट इज टू हेक्टिक फॉर यू, एटलीस्ट गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ मेजर इश्यूज, करेंटली बर्निंग इश्यूज गोइंग ऑन इन द कंट्री। ठीक है, आई डोंट नो वेदर देयर आज ज्योग्राफी और नॉट, क्यों इतनी ठंड पड़ रही है इस बार। ठीक है, बर्फबारी हुई है हर जगह, मतलब इतना वहाँ यूएस में, कनाडा में इतने बर्फ के स्टॉर्म्स आए हुए हैं भयानक एकदम, क्यों आए हैं, व्हाट इज द रीजन? ला नीना एल नीनो इफेक्ट पढ़ना अगर पढ़ पाओ तो, बट मतलब ये सब बर्निंग टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, और बताओ बर्निंग टॉपिक्स जो सोचे हो, जो भी अभी चल रहा है इस टाइम, एटलीस्ट इन आवर कंट्री तो हमें पता ही होना चाहिए कि क्या है करंट इश्यूज जो चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि करंट इश्यूज आपको कैसे पढ़ने हैं, उसका तरीका। देन उसके बाद स्टैटिक पोर्शन पे हमने काफी डिस्कस किया है, अपने स्टेट के बारे में आप बिल्कुल पढ़ेंगे, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पे, और स्टैटिक पोर्शन जो मेरे दिमाग में आएगा मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, एंड यू कैन बी प्रिपेयर्ड विद दैट। ठीक है, और एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास में जब आना तो अपने स्टेट के बारे में सब लोग, स्टेट एंड योर सिटी, इसके बारे में पढ़ के आना। राजस्थान वाले यू नीड टू डिग मोर। ठीक है, यूपी वाले पता सब है, लेकिन और यू नीड टू डिग मोर, भाई चौधरी चरण सिंह के नाम पे एयरपोर्ट है, लेकिन थे कौन ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आई Yes, होप sir. दिस सेशन वाज फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, एंड I'll discuss with दिव्य सर एंड probably we'll schedule another class। लेकिन जितना पढ़ाया है उतना एक बार मन में अभी बैठ के शांति से 10 मिनट यहीं रिवाइज कर लो, क्या मैंने समराइज किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट, यूनियन, टेरिटरी, ये सब अभी बैठ करके ताजा ताजा एक बार मन में अपने रिवाइज कर लोगे,
तो तुरंत जो है ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा. यू डू नॉट नीड टू सी इट अगेन टिल द इंटरव्यू. ठीक है, तो एक बार मन आंख बंद करके शांति से 5-10 मिनट इस पूरी क्लास का एक रिवीजन कर लो, क्या बताया गया, नेशनल एम्बलम जो भी डिस्कशन हुआ वो सब एक बार रिवाइज कर लो क्या था. और उसके बाद जब पढ़ना, जब तैयार करना, तो 2 टास्क हैं आप लोगों के लिए. एक अपने स्टेट के बारे में जो पैरामीटर्स मैंने बताया उन पे आप रिसर्च करेंगे, याद करेंगे. और दूसरा पॉसिबल और क्या क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं या आप मुझसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आई वांट एवरीबॉडी शुड हैव अ सेट ऑफ एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड. Okay, sure, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Great sir. session. Thank you, sir.